Welcome back to SST June. Students, today we are going to start our geography 4th chapter, that is air. You must be wondering that what is air? So air is the mixture of gases, that we can say it is a component of different types of gases. As we can say in this pie chart which is visible on your screen, here are different types of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon and many other gases are there. So the air is the component of these different gases which we know as atmosphere. Our earth is surrounded by a huge blanket of एयर मीन्स जो हमारी अर्थ है वो चारों ओर से एक एयर के ब्लैंकेट की तरह घिरी हुई है एंड द लाइफ ऑन द अर्थ जो हमारी अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है जिसकी वजह से हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट बोलते हैं इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू दिस एयर और एटमॉस्फेयर. सो व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज़ द एयर and what is the use of air or atmosphere? We will see. Let's see the use of air in our life. So students, what is the use of air in humans' life? As you know that all living beings on this earth depends on the atmosphere for the survival. It provides us the air we breathe and it protects us from the harmful rays of sun. Okay, so what is that कि हम जो सांस लेते हैं वो या फिर जो भी हार्मफुल रेज जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं हम उन सब से प्रोटेक्ट करने का काम हमें कौन करता है? वो है हमारा एटमॉस्फेयर या फिर एयर. विदाउट दिस वी वुड बी baked during the daytime and get frozen during night time. So, अगर हमारे आसपास एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा? दिन के टाइम पे जो सन रेज है वो डायरेक्ट हम पे पहुंचेंगी और उससे क्या होगा? हम बेक्ड हो जाएंगे. ओके और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारा जो यूनिवर्स है जिस आप बोलते हो अंतरिक्ष जिसमें कि हमारी पृथ्वी है वहां पर जो कोल्ड है वो हमारी बॉडी को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा. यानी कि शाम के टाइम पे यानी कि रात जब होने लगेगी उस समय पे जो ठंड होगी उससे हम क्या हो जाएंगे? एकदम जम जाएंगे. सो टू नो मोर अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस एयर लेट्स सी अवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक दैट इज the components of the air. Students, do you know that the air which we breathe, it is a mixture of different gases. What are these gases? Already at starting I told you. Again, I am repeating it. It is the nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and the different type of gases. These are known as air. And it is a component of atmosphere. So here one more thing is that nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Means the nitrogen, as I told you in the pie chart, the quantity of nitrogen and oxygen that is 78% and 21%. 78 nitrogen and the 21 is of oxygen. So these two gases are in the atmosphere we find out in a huge amount. Means बहुत ज़्यादा अमाउंट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं वो है नाइट्रोजन जिसका की परसेंटेज है 78% एंड दूसरी है ऑक्सीजन जिसका की परसेंटेज है 21%. सो ये दो गैसेस जो हैं these two gases are in our atmosphere having a huge amount. Gases like carbon dioxide, nitrous oxide,
methane, and ozone are trace gases that account for about a tenth of 1% of the atmosphere. Besides these fixed components of the atmosphere, there are water vapors and various impurities in the atmosphere, such as dust, smoke, salts, carbon monoxide, and some other chemicals. Means to say कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही ह्यूज अमाउंट में, बट उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन ये ट्रेस गैसेस के रूप में है, यानी कि इनकी क्वांटिटी तो है पर बहुत कम अमाउंट में. ओके. और दूसरी चीज़ क्या है, देयर आर वाटर वेपर्स, यानी कि वाटर वेपर्स और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जैसे कि डस्ट, स्मोक, सॉल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी अदर केमिकल्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है उसमें मिलते हैं. नाइट्रोजन इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. यानी कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस. उसके अलावा जो हमारी जो सेकंड नंबर पे जो गैस आती है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है. वाई इट इज़, इट हेल्प्स इन बर्निंग एंड ऑक्सीडेशन. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which makes a perfect balance. Thus, plants maintain a balance between oxygen and carbon dioxide presence in the atmosphere. So, आपको पता होगा, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि जो रेस्पिरेशन सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का और प्लांट्स का, तो उसमें क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स आपका ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग्स एक्सहेल करते हैं उसे आपके प्लांट्स लेते हैं. तो उससे क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें इन दोनों गैसेस का क्या होता है, बैलेंस बना रहता है. सो ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स up only 0.03% of the air. यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इसी वजह से, क्योंकि प्लांट सारी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं, तो इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में जो उसका बैलेंस बना हुआ है वो सिर्फ 0.03% है. Yet it is a vital component of the atmosphere. It controls atmospheric temperature. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या काम होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसको वो कंट्रोल करती है. द नेक्स्ट थिंग, दोज आर द इम्प्योरिटीज. द वाटर वेपर इज यूनिक इन दैट इट्स concentration varies from 0 to 4% of the atmosphere depending on where you are and what time of the day it is. यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, लेकिन ये किसके ऊपर वेरीज करती हैं, किसके ऊपर डिपेंड हैं कि वो टाइम कौन सा है और वहाँ पे कौन प्रेजेंट है. मीन्स जब वाटर वेपर्स किससे बनती हैं, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो ह्यूमिडिटी उसी जगह पे बढ़ेगी जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे और वेदर थोड़ा सा क्या होगा, ह्यूमिड होगा. अगर वेदर ठंडा है तो वहाँ पे वाटर वेपर क्या होंगी, थोड़ा कम होंगी. तो यही हमारे जो वाटर वेपर्स के डिपेंड होने का जो कारण है वो यही है. इन द कोल्ड ड्राई आर्कटिक रीजन्स वाटर वेपर्स यूजुअली अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% of the atmosphere. As already I told you, if the cold area is there, not it is humid, so the water vapors are, the account of the water vapor is less than 1%. While in humid tropical regions, water vapors can account for almost 4%.
सो जहाँ पे ह्यूमिड एरिया होगा वहाँ पे जो वाटर वेपर्स होंगी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी. ओके, सो वाटर वेपर कंटेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग वेदर. आपकी जो वाटर वेपर्स होती हैं, एज आई टोल्ड यू, it is based on the humidity of the atmosphere. So these are the main component which are informing us about the weather. How? That if the water vapors or the weather is humid, so it can be the prediction of rain. If the water vapors are less, so might be the weather can be changed, which we will know in deep in our next topic. So here we were talking about the components of the atmosphere. We have talked about the components. Now let's talk about the structure of our atmosphere. As you can see in this given picture, our atmosphere is divided vertically. Our atmosphere is also a structure that is known as the atmospheric structure. So as you can see, here is a picture in which you can see the different layer of our atmosphere. That is, the first one is troposphere. First one is troposphere. Second one is stratosphere. Third one, mesosphere. The fourth is thermosphere. And the fifth is exosphere. Again, I am repeating these layers. You can see in this picture. The first is troposphere. Second, stratosphere. Third is mesosphere. Fourth, thermosphere. And the fifth is exosphere. So, now we will see these layers in detail. Means what is the work of these layers. As you can say, our first layer is troposphere. What is the troposphere? Let's see. The word tropo is derived from Latin language, which means is change. So we can say the troposphere is a changeable layer in our atmosphere. It is the very first layer and the lowest layer. This is the toward and the most important layer of the atmosphere. It is the very important layer of our atmosphere. It extends to a height of about 8 km at the poles and 18 km at the equators. Means its average height is 0 to 12 km and is vary according to the seasons. If the season is changed, so might be the height can be changed according to the season. We will talk about the activities which are going on in this layer, means troposphere. So all phenomenon activities means all the weather phenomena such as clouds, rainfalls, fog, storms and hailstorms, every type of activities are occur in this layer. ओके, सो मीन्स कह सकते हैं कि जितने भी टाइप की जो वेदर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो आपका क्लाउड्स यानी कि बादल हो यानी बारिश हो या किसी भी तरीके का तूफ़ान या कोहरा वगैरह जो भी होता है, वो सब इस ही लेयर में होता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम. सो व्हाट वी कैन से कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है वो हमें आपके जो सन के एक्सेसिव हीट होती है, यानी कि आपको पता है जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन हम तक उतनी गर्मी क्यों नहीं पहुंच पाती है? ड्यू टू द कॉज ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द मीन्स यू कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर विच इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम दिस द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन. ओके, so the next thing is that it is the densest layer, means सबसे ज़्यादा घनी लेयर है ये densest layer of the atmosphere. Why? Because the uppermost edges of this layers are called the tropopause.
क्या कहते हैं इसके जो सबसे लेयर का जो मेन मिडिल वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और जहाँ पे ये लेयर ख़त्म हो रही है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जहाँ पर ये लेयर ख़त्म हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। और ट्रोपोपॉज के नीचे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी आपके ट्रोपोस्फेयर में ही सिचुएटेड रहती हैं। दीज आर द एक्टिविटीज़ which are the weather phenomena. These are only situated in the troposphere. So what is the work of tropopause? The tropopause, it makes the end of the troposphere. यानी कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है उसका एंड कौन बनाता है, ट्रोपोपॉज बनाता है। एंड इट बियॉन्ड्स दिस टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग, यानी कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पर जो भी आपका टेम्परेचर है, जब वो ट्रोपोपॉज यानी कि द एंड ऑफ द ट्रोपोस्फेयर वहाँ पर तक आपकी जो फर्स्ट लास्ट लेयर है वहाँ पर जब पहुँच जाता है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो स्टेबल हो जाता है, ना ही वो बढ़ता है ना ही वो कम होता है। सो द वर्क इज ट्रोपोस्फेयर is to protect us from the excessive heat of sun and the all weather phenomenon activities such as the rainfall, fog, clouds, hailstorms, storms, every type of weather activities, these are going on in that troposphere. And the last layer of the troposphere is known as the tropopause, which is the, you can say, the boundary of the troposphere. Due to the tropopause, the temperature of our atmosphere is not decreasing or not increasing. Getting? So let's see our next layer of atmosphere. It is stratosphere. Stratosphere lies above the troposphere and extends to a height of around 50 km above the troposphere. यानी कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर ऊपर सिचुएटेड है। ड्यू टू द वार्म टेम्परेचर एंड ड्राई एयर, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदरिंग फिनोमिनास। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो गर्म है और ड्राई एयर है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कोई भी वेदर फिनोमिनास नहीं होते जैसे कि वो ट्रोपोस्फेयर में होते थे। ओके, देयरफॉर इट इज द आइडल लेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन्स उड़ते हैं आसमान में, तो जिस ऊंचाई पे वो उड़ते हैं दैट इज द आइडल लेयर फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन्स। सो दैट्स व्हाई द स्ट्रेटोस्फेयर इज known as the idle layer. Okay, the word strato means straight. जो स्ट्रेटो का मीन्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट, यानी कि एकदम सीधा। द लेयर ऑफ द एयर इन द स्फीयर आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल एंड undisturbed. The temperature in the lower part of the stratosphere is constant, while there is a gradual increase in the upper part. The stratosphere is very rich in ozone and also called ozonosphere. So, what is the second name of the stratosphere? It is ozonosphere. क्या नाम है? ओजोनोस्फीयर, क्योंकि इसमें ओजोन जो गैस है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, दैट्स वाई। दिस गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट radiation of the sun and thus protects the earth from its harmful effects. The upper part of this layer is called stratopause, which separates it from the mesosphere. As you have seen, in the troposphere, the boundary line of the troposphere was tropopause. So in the stratosphere, the boundary line of stratosphere is stratopause. पॉज का मीनिंग क्या होता है, रुकना। तो जहाँ पे आपकी जो स्ट्रेट लाइन है यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर है वो रुक जाती है, उससे हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज।
pause. Our next layer is mesosphere. So what is mesosphere? The mesosphere extends up to a height of 80 km. Here, the temperature starts decreasing with height and reaches about 100 degrees centigrade at the height of 80 km. Meteoroids. Meteoroids burn up in this layer as they enter from space due to friction and presence of some oxygen. यानी कि इस लेयर पे जब भी मीटियोराइट्स आते हैं, क्योंकि इस लेयर में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, तो जो मीटियोराइट्स जब इस लेयर में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं. जब जल जाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या पैदा होती है, गर्मी होती है, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है. The mesopause, the upper part of this layer, separates it from the ionosphere. So, as I told you, in the stratosphere and troposphere, as well as here is also a pause which is known as mesopause. The next layer is thermosphere. Laying above the mesosphere, this layer extends between 80 to 700 km. Here, temperature rise rapidly with increasing height. यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है. This layer contains electricity charged particles called ions. इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स होते हैं चार्ज के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं. वो इस लेयर पे हमें मिलते हैं. Which help in transmitting communication signals. So ये जो आयंस होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, जो सिग्नल्स हमें आते हैं सैटेलाइट्स वगैरह के, उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं. रेडियो वेव्स आर सेंट बैक टू द अर्थ फ्रॉम दिस लेयर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आयनोस्फीयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन. और क्योंकि इसमें आयंस मिलते हैं इसीलिए हम इस थर्मोस्फेयर को आयोनोस्फेयर भी कहते हैं. ओके, गेटिंग? सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेयर. इट इज एक्सोस्फेयर. Exosphere is the outermost layer of the atmosphere, which extend to a height of about 700 to 10,000 km and merge with the interplanetary space. जो हमारा एक्सोस्फेयर है वो 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक इंक्रीज है और किसके साथ मिलता है, जो इंटरप्लानेटरी स्पेस है, यानी कि हमारे स्पेस के बाहर का जो एरिया है, जिससे कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के बाहर का जो उसकी आप बोल सकते हो ऑरा है, उससे बाहर का जो एरिया है उसे हम एक्सोस्फेयर बोल सकते हैं. द एयर प्रेजेंट हियर इज़ वेरी थिन कंटेनिंग गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन. क्योंकि जो यहाँ पर जो ये एरिया है इसमें क्या है, गैसेस, हीलियम और हाइड्रोजन, ये दोनों बहुत हल्की गैसें होती हैं. ठीक है, तो दैट स्केप इनटू स्पेस. तो ये वाला एरिया हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये किस में कनेक्ट हो जाता है, सीधे स्पेस पे कनेक्ट हो जाता है. दिस इज द लेयर वेयर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ. और यही जो एक्सोस्फेयर है वो एरिया है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जहाँ पे जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं वो सारी यहाँ पे क्या करती हैं, अर्थ की जो ऑर्बिट है उस पर क्या करती हैं, घूमती हैं, अर्थ के चारों ओर क्या लगाती हैं, चक्कर लगाती हैं. गेटिंग? मीन्स द एक्सोस्फेयर इज द लेयर वेयर ऑल मैन मेड सैटेलाइट्स आर सिचुएटेड. So here I am giving you few terms related to these two topics which I explained today. You have to note down these terms in your fair notebook. Term 1 is weather. Term 2 climate.
Term 3 Humidity. Term 4 Atmosphere. So students, here our today's topic of the chapter is complete. In our next video, we will know the next topic of the chapter air, which is weather and climate. So for that, keep watching SST Zone.